Good morning everyone. In today's class we are going to start our next chapter, chapter number 11, thermal properties of matter. This is very important chapter for you on the basis of competitions and for your examination. In this chapter, first of all, I am going to discuss the syllabus of this chapter. What topics are contained in this chapter. Means what topics we have to study in this chapter. So first of all, we are going to discuss the syllabus. Syllabus of this chapter. What topics this chapter consists of? That first of all we have to discuss here heat. In this chapter, first topic is the heat. We will discuss here about the heat. What is the meaning of heat? Then we will discuss. Second topic is temperature. Temperature. देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. In the thermal expansion we will discuss the thermal expansion of solids, liquid and gases. In all the cases, how they are expanded due to the heat or due to the thermal energy, in this topic we will discuss. Then we will discuss anomalous expansion. Anomalous expansion. Anomalous expansion of water. Means the expansion of liquid, and what is the difference of expansion of water in respect to the other liquid. Means anomalous expansion we will discuss कि what is the difference between the expansion of water and the expansion of the other liquid. Then we have our next topic, specific heat capacity. Specific heat capacity. और यहाँ पे हम दो तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, Cp एंड Cv. Cp क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. We have the two types of specific heat. So that we will discuss here. Specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. In this we will also discuss about the calorimetry. ये क्या होता है और what is the use of this in life? Calorimetry. This we will discuss. Then we have our next topic is next topic is our change of state. Means change of state मतलब आपका सॉलिड कैसे कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है गैसेस में. हाउ देयर इज ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. एंड इनसाइड दैट the very important thing is that latent heat. Latent heat we will discuss. We have the two types of latent heat. There we will discuss about the latent heat capacity. Latent heat capacity. This is our topic. इसके बाद हम बात करते हैं heat transfer. Heat transfer मतलब how heat is transferred from one body to the other body and from one place to the other places. In this we have the three methods.
First one is the conduction. This we have done in the lower classes. Conduction, convection, and radiation. These are the three processes by which heat transfer from one place to the other place and from one body to the other body. Then we will discuss next topic, thermal conductivity. Thermal conductivity. Thermal conductivity. Then qualitative idea of qualitative idea of ब्लैक बॉडी. ये क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे. रेडिएशन देन वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. Wien's displacement law. Wien's displacement law. Our next topic is Stephen's law. And greenhouse effect. Greenhouse effect. These are the topics which is contained by this chapter. Thermal properties of matter: heat, temperature, thermal expansion, anomalous expansion of water, specific heat capacity. In that we will discuss two specific heat capacity, Cp and Cv, and we will discuss about the calorimetry. Then we have the change of state, और चेंज ऑफ स्टेट में ही हम बात करते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी के बारे में. ठीक. देन हमारे पास है हीट ट्रांसफर, इन विच वी हैव द टॉपिक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. देन वी हैव थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद हम क्वालिटेटिवली बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में. देन वी हैव वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. दीज आर द टॉपिक्स which we have to discuss. But this time, due to the reduced of syllabus, few topics are reduced from our syllabus, in which we have to don't discuss this topic. ये हमारे पास heat है, this we have temperature, और एक टॉपिक और हमारा है this heat transfer. This topic. ये पूरा टॉपिक इस समय आपका ये सिलेबस से आपका रिड्यूस हो जाएगा. प्रीवियस ईयर्स आपका था, नेक्स्ट ईयर में भी ये हो सकता है, बट दिस टाइम दीज थ्री टॉपिक्स इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. कौन कौन सा आपको नहीं पढ़ना है? हीट नहीं पढ़ना है, अबाउट टेम्परेचर यू डोंट हैव टू डिस्कस, और आपका हीट ट्रांसफर में तीनों मेथड आपको नहीं पढ़ने हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. ये काफी लंबा टॉपिक है तीनों टॉपिक, तो वी डोंट हैव टू डिस्कस दीज थ्री टॉपिक्स एट दिस टाइम. सो वी विल डिस्कस विच टॉपिक्स. ये हम हटा देते हैं, हमारे पास हीट नहीं रहेगा, टेम्परेचर नहीं होगा, एंड देन वी डोंट हैव टू डिस्कस हीट ट्रांसफर. इसमें आपके तीनों मेथड हम नहीं पढ़ेंगे. ये हो गया आपका. तो देन वी हैव टू डिस्कस फॉलोइंग दिस टॉपिक्स: थर्मल एक्सपेंशन, एनामलस एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ स्टेट, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. So, first of all, we are going to start with the thermal expansion of solid, liquid and gases. चलिए, तो फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में. What is the meaning of expansion? Means there is a increase in something. तो जब किसी चीज में अगर इंक्रीज होता है तो that is expanded. तो अब एक्सपेंशन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, हीट की वजह से. तो अगर किसी भी बॉडी में एक्सपेंशन हो रहा हो, इंक्रीज इन देयर साइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. तो क्या हुआ? दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. इंक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी, इंक्रीज इन साइज
ऑफ ए बॉडी, किसकी वजह से? ड्यू टू हीट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्लियर? दिस इज द सिंपल वर्ड कि अगर किसी भी बॉडी के साइज में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द हीट, गर्म करने पे, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने पे, हीट प्रोवाइड करने पे, तो दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके बाद हमारे पास एक टाइप्स ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। अब टाइप्स में हम क्या समझ सकते हैं? टाइप्स में हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर इंक्रीज इन साइज में अगर हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ होता है, किसी भी बॉडी की अगर लेंथ में कोई इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं लैंगिट्यूडिनल या आपका लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर? तो अगर मान लीजिए इंक्रीज इन साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इंक्रीज आपको उसकी लेंथ में भी हो सकता है, वो इंक्रीज उसके एरिया में भी हो सकता है, वो इंक्रीज उसके वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज या डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ड्यू टू द हीट वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। ये कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स। इसमें कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स के हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है। फर्स्ट क्या होता है? उसको बोलते हैं लीनियर, ये आपका है लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर? अब लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? इफ देयर इज ए इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए मेटल रॉड ऑन हीटिंग, देन उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन हम लोग बात कर रहे थे, तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है? इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड, इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन द, हियर क्या होता है? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द metal rod. Rod में why we are taking about the rod? Because we are taking the linear expansion, means हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ में क्या होगा? रॉड की ही बात करेंगे, तो ये हमारा हो गया लीनियर एक्सपेंशन। डिटेल में हम इसकी बात पढ़ेंगे, पहले हम इसको समझ हम पढ़ लेते हैं एक साथ में। सेकेंड हमारा बस होता है सरफेस एक्सपेंशन। सरफेस और इसको बोलते हैं एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये क्या है? इफ देयर इज ए इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए बॉडी, किसी भी सरफेस की एरिया में अगर इंक्रीज होता है, देन दैट एक्सपेंशन इज नोन एज द सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्लियर? ये क्या होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए मेटल शीट ऑन हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। If there is an increase in length, then that expansion is the linear expansion. If there is a expansion or increase in the surface area, उसको बोलेंगे superficial expansion. थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड is the cubical expansion. If there is a increase in volume, then of a block on heating, it is the increase in volume of a block due to heating. क्लियर? तो ये हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन due to the increase in length, superficial expansion due to the increase in surface,
cubical expansion due to the increase in volume of a block. Clear? अब हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द लीनियर एक्सपेंशन। तो चलिए हम लिखते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन एंड फर्स्ट पॉइंट है आपका लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या सिंपली हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। इसमें हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्जर्व दैट ये इंपिरिकल लॉ है, तो इसमें ऑब्जर्व ये किया गया, सपोज दैट वी हैव टेकन ए रॉड, हमने एक रॉड ले लिया है। क्लियर? दिस वी हैव टेकन ए रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल। क्लियर? अब ड्यू टू द हीटिंग इफ वी हीट इट तो इट्स लेंथ बिकम, ये हमारी लेंथ हो गई एल प्राइम। ये क्या है? दिस इज द फाइनल लेंथ आफ्टर हीटिंग। वी हैव ए इनिशियल रॉड ऑफ लेंथ एल, व्हेन वी हीट इट देन देयर लेंथ बिकम एल प्राइम। क्लियर? देन व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ ड्यू टू द हीटिंग? वो कितना हो जाएगा? एल प्राइम माइनस एल इज इक्वल टू डेल्टा एल। हमने ये ले लिया, ये भी हम मान लेते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये आपका देखा गया कि जो आपका ऑब्जर्व इट इज सीन दैट कि जो इंक्रीज इन लेंथ है, फर्स्ट आपका फैक्टर है इंक्रीज इन लेंथ, वो क्या होगा? एल प्राइम माइनस एल। ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। एंड हाउ इट डिपेंड्स? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करते हैं तो ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। इफ देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर तो देयर विल बी ए स्मॉल इंक्रीज इन द लेंथ। क्लियर? सेकेंड फैक्टर हमारा जो होता है एल माइनस एल, एल प्राइम माइनस एल, मतलब ये क्या है? इंक्रीज इन लेंथ। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ जो आपका होता है, ओरिजिनल लेंथ होता है, उसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारे पास स्मॉल लेंथ का कोई मेटल रॉड है तो देयर विल बी ए स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ, बट हमारे पास अगर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, अगर हमारे पास रॉड बड़ा है, लेंथ उसकी बड़ी है, तो देयर विल बी ए लार्ज इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो फ्रॉम 1 and 2 we can write down L prime minus L is directly proportional to L into delta T। दोनों को हमने एक साथ लिख लिया कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो है आपकी ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड पे भी डिपेंड करती है, और दैट डिपेंड्स अपॉन द राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं आर एल प्राइम माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। या हमारे पास है एल प्राइम इज इक्वल टू एल, दिस विल बिकम प्लस एल प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। या इसको हम लिख सकते हैं एल प्राइम बराबर एल, वी कैन टेक कॉमन, एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फाइनल लेंथ व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज गिवन बाय इनिशियल लेंथ in bracket 1 plus alpha into delta t, where alpha
where alpha is a constant of proportionality known as is called coefficient of linear expansion. उसको क्या बोलते हैं? coefficient of linear expansion. ठीक है, अभी हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड. यह आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, राइजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. यह किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड. मतलब अगर हमारे पास एल्यूमिनियम रॉड है, आयरन रॉड है, सिल्वर रॉड है, ठीक, तो इन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड, मेटल रॉड्स, देयर इज ए डिफरेंट इंक्रीज इन देयर लेंथ. कुछ में एक्सपेंशन आपका ज्यादा होगा और कुछ में एक्सपेंशन आपका कम होगा. इट्स क्लियर? तो ये तो हमारे पास हो गया अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. क्या होता है? दिस इज ए कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड या व्हिच कैरेक्टराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड. देन अब हम इसकी डेफिनेशन यहां से फाइंड आउट करेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कर लेते हैं. इट कैन बी डिफाइंड बाय दिस वे. यहां से अगर हम अल्फा बराबर लिखेंगे तो कितना होगा? अल्फा विल बी इक्वल टू, फ्रॉम दिस वी आर राइटिंग अल्फा इज इक्वल टू एल प्राइम माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी. ये तो होगा एल प्राइम माइनस एल. क्या है? दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ. ये हमारे पास क्या है? इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाई यल. क्या है? ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये हमारे पास क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये हमारे पास अल्फा है. अब इफ यू वांट टू डिफाइन, इसको हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं न्यूमेरिकली, तो ये किसके बराबर? अगर ओरिजिनल लेंथ को अगर हम यूनिट मान लें, स्मॉल एल को अगर 1 ले लें, राइज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री कर लें, तो व्हाट विल बी द अल्फा? दिस विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द मेटल रॉड. यही तो होगा. तो अल्फा क्या है? दिस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए रॉड ऑफ यूनिट लेंथ व्हेन देयर इज ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन यूनिट. ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. तो हेंस कोएफिशिएंट ऑफ, इसकी डेफिनेशन आप लिख देते हैं कि हेंस कोएफिशिएंट, फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ऐसे ही आप इस सुपरफिशियल में फाइंड आउट कर सकते हैं. केमिकल एक्सपेंशन को भी ऐसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं सेम वे. तो फर्स्ट वी हैव दिस द हेंस द डेफिनेशन हम लिख देते हैं. Hence the coefficient of linear expansion can be defined as linear expansion of a linear expansion of a material ऑफ सॉलिड. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये किसका होता है? दिस इज ए द मटेरियल ऑफ द सॉलिड इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ कब? पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ
पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री rise in its temperature। मतलब हमने क्या लिया, राइज इन टेम्परेचर को यूनिट कर लिया, ओरिजिनल लेंथ हमने यूनिट ले लिया, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द मेटल रॉड, दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ ए बॉडी। और अगर इसकी यूनिट भी देख लेते हैं, अगर इसको यूनिट अगर पता करना है तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इंक्रीज इन लेंथ आपका पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो ये चीज आप देखें, इंक्रीज इन लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, तो इसकी यूनिट तो लेंथ आपकी कैंसिल हो जाएगी। देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, केल्विन पावर -1 या 1/K। ये आपका दिस इज द पर डिग्री केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। चलिए हम नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में हमने देख लिया था, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा। अल्फा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इफ देयर इज ए यूनिट राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट मेटल। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। हियर व्हाट इज ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट हम इससे बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की हम बात कर ले रहे हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो हम देख ले रहे हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, दिस इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट, ये तो होता है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो इंक्रीज इन एरिया ऑफ द मेटल शीट S प्राइम हो रही है, एंड दिस इज द ओरिजिनल सरफेस एरिया, तो जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है दिस, ये क्या टर्म रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये दिस इज द S प्राइम इज द फाइनल सरफेस एरिया ऑफ ए मेटल शीट, और दिस इज द इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट। तो दिस सब्सट्रैक्शन, this difference of this will represent the increase in the surface area of a sheet is directly proportional to the increase in temperature। ये आपका देखा गया कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट, सिमिलरली जैसे हमने लेंथ में बात किया था कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिपेंड्स अपॉन द राइज इन टेम्परेचर, एंड हाउ इट डिपेंड्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज और इंक्रीज इन द टेम्परेचर। If there is a small increase in temperature, then there will be a small increase in the surface area. If there is a large increase in the temperature, then there will be a large increase in the surface area. First factor. Then second factor क्या था, S minus S prime minus S is directly proportional to S। मतलब क्या है, जो increase in surface area है that also depends upon the original area। मतलब अगर हमारे पास छोटी सी एरिया है तो इसमें इंक्रीज कम होगा, अगर हमारे पास लार्ज एरिया है तो देयर विल बी ए लार्ज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी या मेटल शीट। तो ये हमारे पास टू फैक्टर है ऑन विच द इंक्रीज आर सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिपेंड्स। क्या क्या, राइज इन टेम्परेचर पे और इनिशियल सरफेस एरिया पे। बाय कंबाइनिंग दिस टू, by combining these, इसको हम क्या लिख सकते हैं, S प्राइम माइनस S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S इंटू डेल्टा T। सेम में वहां पे लिखा था L प्राइम माइनस L इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा T, या इसको हम लिख सकते हैं S प्राइम माइनस S इज इक्वल टू बीटा, दिस इज द सिंबल बीटा, S इंटू डेल्टा T। वेयर बीटा क्या होता है अभी हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू S प्राइम बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, S विल बी दिस साइड प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा
S इंटू डेल्टा टी, या S प्राइम बराबर S1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। वी हैव टेकन S कॉमन, यहाँ पे भी S है हमारे पास, एक S यहाँ पे भी है, तो वी हैव टेकन कॉमन, तो S प्राइम बराबर S1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द फाइनल सरफेस एरिया ऑफ ए मेटल शीट of the initial surface area S when there is a increase of that substance, yeah, that surface is delta T, where beta is what, where beta is a proportionality constant, is called coefficient of superficial expansion, is called coefficient of superficial expansion, or it depends upon the nature of the solid also. This is the property of the nature of the material, and depends on nature of material, मतलब अगर हमारे पास अलग अलग मेटल शीट है डिफरेंट मटेरियल की, तो उसके लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। और इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव, ऑल्सो वी हैव क्या हमारे पास है, बीटा इज इक्वल टू S प्राइम माइनस S डिवाइडेड बाई S इंटू डेल्टा टी। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो बीटा इज इक्वल टू, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ द सुपरफिशियल एक्सपेंशन कि इट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, सेम वे एज वी हैव डिफाइंड इन दैट केसेस। और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री पर केल्विन, दोनों हम लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन यू कैन राइट योरसेल्फ कि कोफिशिएंट ऑफ द सरफेस एक्सपेंशन द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इफ देयर इज ए इंक्रीज इन द ओरिजिनल सरफेस यूनिट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्लियर। एंड सेम वे आप इन केस ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन भी आप वैसे ही कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू डू वन थिंग, सिर्फ आपको अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन की, क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, दिस डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिमिलरली आपका फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ये किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये जहां भी आपने S लिखा है वो आपका V हो जाएगा, दिस V, और ये आपका क्या हो जाएगा, V प्राइम माइनस V। ये यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल सुपरफिशियल एक्सपेंशन था उसकी जगह आपके पास हो जाएगा गामा इंटू V डेल्टा टी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, V प्राइम V प्लस गामा V डेल्टा टी, या हम इसको लिख सकते हैं गामा V और ये आपका V प्राइम, वेयर गामा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसको हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और यहां से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा, गामा, या इसको फिर से डिफाइन ही कर लेते हैं कि गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
दिस फ्रॉम दिस रिलेशन अगर हम गामा डिफाइन करना चाहते हैं, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन इज इक्वल टू v प्राइम माइनस v अपॉन v इंटू डेल्टा t। क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वहां पे सरफेस हो जाएगा, वहां पे एक में लेंथ हो जाएगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। बाकी इस सबकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस माइनस आर केल्विन पावर माइनस 1 या पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो दिस इज सिमिलर इन ऑल द केसेस। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड coefficient of linear expansion, coefficient of cubical expansion and coefficient of the superficial expansion, and that is represented by alpha, beta and gamma. Alpha is the coefficient of linear expansion, beta is the coefficient of superficial expansion and gamma is the coefficient of the cubical expansion. In next classes we will discuss the relation between these two, how they are related to each other.